Hello viewers, welcome to Kashmir Life Interviews. Today we are joined by Senior Vice President of People's Conference and former Minister Mr. Abdul Ghani Wakil. We are going to be talking to him about the recently conducted DDC elections and the politics inside PAGD. Welcome Wakil Saab, welcome to Kashmir Life. بہت بہت شکریہ. سر میرا پہلا سوال ہے کہ آپ نے یو ہیو ریز کویشچنز آن سنسیئرٹی آف پی اے جی ڈی. کیا اپریہنشنز ہیں آپ کے؟ دیکھیے گپکار الائنس جو ہے الائنس پیپلز الائنس، اگر ہم دیکھیں گے تو ایک اچھی بات تھی کہ بہت سے پارٹیاں اکٹھے آئی تھی، لیکن پولیٹکس میں جب بڑی پارٹیاں ملتی ہے تو ان کا اپنا ایگو ہوتا ہے، اور جس وجہ سے جو مشن ہوتا ہے اس کامیابی سے آگے نہیں جاتا ہے، کیونکہ ان کو آپس میں کہیں نہ کہیں کچھ ریزرویشنز ہوتی ہے. اور میں نے شروع سے ان ریزرویشنز کا جو خدشات مجھے نظر آئے، میں نے اپنے چیئرمین سجاد لون صاحب کو ٹائم پر آگاہ کیا، ایک چٹھی کے ذریعے بھی آگاہ کیا اور وربلی بھی آگاہ کیا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس الائنس میں لاجک ہے، ریشنیل ہے، کیونکہ یہ بہت عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہیں، الزامات لگائے ہیں. آپ یہ کہاں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ اگر اکٹھے ہونے کی بات بھی ہے، مطلب کچھ ایشوز پر اکٹھے ہو سکتے ہیں. مطلب ہم سے ایک بہت زیادتی کی ہوئی ریاست جموں کشمیر کے ساتھ، آرٹیکل 370 ہم سے چھینا گیا، لیکن اس کے ریسٹوریشن کے لیے کوئی جامع پروگرام ہونا چاہیے تھا، وہ مجھے نظر نہیں آیا. میں نے فاروق صاحب جو اس الائنس کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے بہت دفعہ بیانات سنے، انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں. یہ تو ہندوستان کی تمام پارٹیاں کہتے ہیں، یہاں کی بھی تمام پارٹی کے، کانگریس بھی کہتے ہیں، بی جے پی بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں. اگر اتنا ہی ہے تو پھر اتحاد کس لیے ہے؟ اگر کوئی نیا پروگرام اس سلسلے میں ہے کہ ریسٹوریشن کے لیے کوئی جامع پروگرام ہے، کوئی نئی چیز ہے جس سے لوگوں کو بھی لگے ہاں ہے، تو اگر صرف اس کا مقصد ہے کہ الیکشن کے لیے اتحاد ہو، ہم پاور گیم ہو، تو مجھے یہ ایک ریزرویشن تھی کہ بھی یہ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی جامع پروگرام ہے جو مجھے نظر آیا. اور میں نے ان خدشات کا ذکر کیا اور پاسٹ کا بھی میں نے ذکر کیا کہ پاسٹ میں ان پارٹیوں کے کیا تعلقات رہے، تو اچانک کیسے دوست بنے، کہیں تو کچھ درپردہ کچھ کاری فرما ہے. تو یہ اور کوئی بات مت ہے جس کے لیے یہ متحد ہو رہے ہیں، اور ہمارے چیئرمین صاحب اس سے شاید خبر نہیں ہے. تو وکیل صاحب آپ کے حساب سے کیا روڈ میپ ہونا چاہیے؟ دیکھیے جب آپ، میرے مقصد یہ ہے، اگر آپ کو ریسٹوریشن کے لیے صرف یہی پروگرام ہے، آپ کے پاس یہ ایک منزل ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا انتظار کریں، تو پھر اس کے لیے تو سب انتظار کر رہے ہیں. جامع پروگرام ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ہے لوگوں کے پاس جانے کا، اگر آپ کو پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا، اگر آپ کو ڈیموکریٹک وے پریشرائز کرنے کا مرکزی سرکار کو، کچھ تو پروگرام ہونا چاہیے نا جو لوگوں کو لگے. آج گپکار پیپلز الائنس نے ایسا پروگرام دیا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں نظر آیا، بلکہ ہم ڈی ڈی سی الیکشنز تک اپنے آپ کو ہم نے یہ دکھایا کہ ہم پنچایت الیکشن کے لیے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ الیکشن پہلے ڈی ڈی سی الیکشنز تھے، اس میں بھی کوئی سنسیئرٹی نہیں تھی. اس میں بھی جو میں نے دیکھا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہر جگہ، خاص کر جو بگ الائنس ہے، انہوں نے پراکسی کینڈیڈیٹ کھڑا کیے تھے. جب آج تک کہیں اس لیڈرشپ نے کشمیریوں کو، جموں کشمیر کے لوگوں کو کسی منزل تک نہیں پہنچایا، اب آگے کیسے ہم امید رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے شروع سے یہی دیکھنا آیا ہے جو 50 سال کی مجھے پولیٹیکل ٹینر میں، کہ پاور کے سوا یہاں کے لیڈروں کو کوئی منزل نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یونٹی رہے گی پی ایچ ڈی میں، کیونکہ بہت سارے پراکسی کینڈیڈیٹس تھے الیکشن میں ڈی ڈی سی کے؟ تو بھی یونٹی، مجھے لگتا ہے یونٹی دیکھنی ہے، خاص کر دو پارٹیوں کو کس حد تک یونٹی رہے گی. دیکھیں پارٹی کون ہے وہاں کیا ہے، آپ خود سمجھتے ہیں، پارٹی دو ہی ہے اور تیسرا ہم ہیں. اب ہمارے ریزرویشن ہے، میری ریزرویشن ہے، میں بھی چیئرمین صاحب میرے ریزرویشن سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میرے بحثیت ایک
कश्मीरी के बहसत एक जम्मू कश्मीर के रहने वाले के मेरे जो खदशात है मैंने इजहार किया है, लेकिन वहाँ कौन और किसका इतिहाद है? आप मुझे बताइए, कोई ऐसी बड़ी पार्टी है जो इस अलायंस में है एक्सेप्ट 2 पार्टीज, कि जो पॉलिटिकल गेम जो है, पावर गेम जो मुझे नज़र आ रही है, उस लिहाज से मुझे लग रहा है ये अलायंस ज़्यादा देर तक नहीं रहे। तो पीसी क्यों हिस्सा है फिर पीएचडी का? अभी भी आप सीनियर वाइस हमने सिंसियरली, मैंने तो अपनी ज़ाती राय बताई थी, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब सिंसियरली से जुड़े हुए थे। अब उसको क्या और सोच में, वो मेरे इन बातों से जो मैंने उसको अप्रहेंशन इजहार किए हैं, बल्कि मैंने ये भी मुतालबा किया है कि लोन साहब, सजाद साहब, आप कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाएं, इसमें इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम किधर हैं, कहाँ जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि कोई हमें अपने साथ डुबाएगा, क्योंकि यहाँ जो 2 पार्टियाँ हैं उन्होंने बहुत अरसे तक हुकूमतें की, उनसे मिस्टेक्स हुई, गलतियाँ हुई, बहुत चीज़ें हुई। कहीं वो अपने बचाने के लिए हमें इस्तेमाल मत करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपसे साफ कहूँ कि जिस चीज़ ने इस जम्मू कश्मीर के लोगों को फना करके रखा है, और वो करप्शन है। और करप्शन के हवाले से मैं बात ये साफ कहूँगा कि कोई भी हो जो करप्शन में इन्वॉल्व हो, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। तो ये करप्शन से जो बचाने की बात कह रहे हैं आप कि कुछ लोग करप्शन से खुद को बचाने के लिए जुड़ गए, तो आपको लगता है ये कौन लोग हैं जो करप्शन के लिए जिन्होंने बहुत देर तक, क्या पीएचडी करप्शन के लिए हैं? नहीं, करप्शन से बचने के लिए हैं? देखिए, जो मुझे लग रहा है इसमें तमाम पार्टियां नहीं रही। ये क्या, जब कोई प्रोग्राम किसी पार्टी में न हो तो कोई हिडन प्रोग्राम हो सकता है, कुछ और चीज़ें हो सकता है जिससे हम मतलब बाखबर नहीं है या हम नहीं समझते हैं। मे भी हम समझ भी सकते हैं, लेकिन है कुछ जिस वजह से, क्योंकि वरना अगर उनके पास लोगों के खातिर कोई प्रोग्राम है, मैं ये बार बार आपको कहता हूँ, तो फिर उनको वो प्रोग्राम लेके सामने आना चाहिए, कुछ नई चीज़ लेके आना चाहिए जो हमें आज तक नज़र नहीं आई। वो अभी तक नज़र नहीं आई, हमें सिर्फ इतना ही नज़र आई, आनन फानन डीसीसी इलेक्शंस के लिए इत्तेहाद हो गया। आपको लगता है कि जम्मू और कश्मीर लाइंस पे जेएंडके डिवाइडेड है इस इलेक्शन के बाद, कि जम्मू में एक साइड है और कश्मीर में एक साइड है? देखिए, ये भी एक खतरा है जो आपके सही फरमाया, जो ये भी एक खतरा है पोलराइजेशन का। इस अलायंस से ये भी हो गया कि जम्मू का जो हिंदू था वो मुत्तहिद हो गया, और यहाँ जो है यहाँ भी खतरात हो गए कि भी मुत्तहिद होने के, हालांकि इतना नज़र नहीं आया, इतना कोई अलायंस ने इतना कमाल करके नहीं दिखाया। अगर इसमें सिंसियरिटी होती तो मेरा नज़र था हमें स्वीप करना चाहिए था पोल, वो हम कर नहीं पाए। तो इसलिए, लेकिन एक बात ज़रूर हुई कि जम्मू में जो कम्युनिस्ट फोर्सेस है वो कंसोलिडेट हुए और उनको वहाँ फ़ायदा हुआ, और उनको यहाँ भी फ़ायदा हुआ, चाहे वो ज़्यादा सीटें नहीं जीत सके, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो और उनके जो बी टीम एलाइज है वो दूसरे नंबर पर आए। आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि मैंने सजाद लोन को लेटर लिखी है जो आपके चेयरमैन हैं, तो उन्हें अभी तक रिस्पॉन्ड किया है? हैज़ ही रिस्पॉन्डेड टू इट? नहीं, उन्होंने मुझे इन राइटिंग रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन मैंने मीटिंग में भी ये बातें उठाई। उन्होंने कहा इस पर आप डिबेट करो, डिस्कशन करो, कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाओ, और इस पर डिस्कशन करके जो जमहूरी तरीका है, जो मेजॉरिटी भी होगा तो उसका वही चलेगा। लेकिन मेरे जो खदशात हैं वो दिन ब दिन बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। मैं सच्चाई पर हूँ, मैं सच बात कहता हूँ। वकील साहब, मुझे बताइए, 370 को हटाया गया, बाइफरकेट हो गई एर्स्टाइल स्टेट, मुझे बताइए आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? बिकॉज पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी अलाई थी बीजेपी के साथ कुछ टाइम पहले, तो आप किसको? हम अलाइज नहीं थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट में ये जो फैसला हुआ ये बिल्कुल लोगों के खिलाफ हुआ, बल्कि यहाँ हमें ये मसला है, एक बात हमें मानना चाहिए, मोदी जी को भी मानना चाहिए, कश्मीर इज एन इशू, ये इंटरनेशनल इशू है, ये यूएनओ में है। और अगर मैं कहूँगा खुश करने के लिए ये कुछ नहीं है, ये गलत है। इस पर डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, तकरीरें होती है, सम इशू दिया, और इस इशू को हल करने के लिए एक रास्ता निकाला था, वो था आर्टिकल 370, 335A, कि यहाँ की एक खुसूसी पोजीशन रहे। यहाँ गरीब रियासत है, इस गरीब लोगों की ज़मीन जो है यहाँ इजीली कोई भी सरमायादार खरीद सकता है,
यहाँ हर चीज में स्पेशलिटी रहे, रिक्रूटमेंट में, रोजगार की भर्ती में, हर चीज में रहे। और ये एक वया मीडिया निकाला था उस बड़े इशू का, जो एक डिस्प्यूटेड इशू रहा है, उसमें ये एक वया मीडिया था। और ये सबसे बड़ी गलती थी मरकजी सरकार से। ये एक ब्रिज था जम्मू कश्मीर के लोगों को और रेस्ट ऑफ द कंट्री आपस में, एक ब्रिज था। इस ब्रिज को खत्म करना ये न मुल्क के मफाद में है, न रियासत के मफाद में। कसूरवार किसको मानते हैं? कसूरवार किसको मानते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। ये तो खुले आम उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी जो मेजॉरिटी उसको गलत ये क्या इसको कहते हैं इस्तेमाल किया। आपने पावर गेम की बात की पीएचडी के अंदर, तो कौन ये पावर गेम खेल रहा है? कौन पावर के लिए लड़ रहा है पीएचडी के गर्भ में? नहीं, वो देखा आपने, देखिए पावर हर एक का हक है जमहूरी मुल्क में, मगर किसी फोरम को इस्तेमाल करना कि भाई सिर्फ अगर ये डीसी इलेक्शन के लिए था, सिर्फ ये इत्तेहाद क्योंकि कल दूसरे इलेक्शन के हो गए, तो फिर मकसद क्या है? मकसद था कि भाई जो हमसे छीना गया है उसको कैसे हासिल किया जाए। जब आपको लगता है कि ये जो डीडीसी इलेक्शन हुए ये बहुत फायदेमंद होंगे ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट के लिए, जैसा बोला जा रहा है? देखिए, इलेक्शन जमहूरियत में मतलब बहुत ज़रूरी है कि ये ग्रास रूट लेवल तक पावर होना चाहिए, लेकिन इसमें जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स में उनको सिंसियरिटी होनी चाहिए, उनको जहन में वो मंशा होना चाहिए। अगर उनका जो मैंने आज तक देखा, यहाँ ब्लॉक चेयरमैन बने, सरपंच बने, ज़मीन पर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। टू बी फ्रैंक है ना, मुझे ज़मीन पर कोई तरक्की नज़र नहीं आया इन 2-3 सालों में। मुझे कोई ऐसी सी चेंज नज़र नहीं आया इन 2-3 सालों में। अगर ऐसा ही इस डीडीसी इलेक्शन की भी रहा तो फिर लोग खुद समझेंगे, मतलब इतने दावे किए जा रहे हैं, स्टेटमेंट्स इशू किए जा रहे हैं, मीटिंग्स की जा रही है, लेकिन आप देखिए गाँव में देखिए वहाँ क्या बंद बनते हैं, आप गाँव में देखिए वहाँ ड्रेन्स बनते हैं, आप टाउन्स में देखिए उनका हाल क्या है, आप सिटी का देखिए इसका हाल क्या है। मैं भी मतलब सोपोर देखिए वहाँ क्या हाल है, कितनी बदहाली है, मैं वहाँ बिलोंग करता हूँ। आप हंदवारा हर जगह देखिए कोई सी चेंज नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। अब डीसीसी इलेक्शन में क्या इनकलाब आएगा ये भी वक्त बताएगा। एक ज़माने में कश्मीर में एक मूवमेंट को सियासी आवारागर्दी बोला गया, तो आपको लगता है पीएचडी वहाँ की तरफ जा रहा है? क्योंकि जैसी आपकी स्टेटमेंट से मैं उनके हवाले से बोल रहा हूँ। देखिए अभी मैं कहता हूँ, मैं तो इतना इसको नहीं, ये दो पार्टियों का मेन जो बड़े हैं ठीक है, हम भी इसमें हैं, लेकिन जो इत्तेहाद मैंने आपको कहा कि आनंद फानंद कांग्रेस भी इससे अलग हो गई, तो ये लोग खुद इसका फैसला करेंगे, वक्त आएगा, इनसे पूछेंगे, इनसे बहुत पूछना है, इनसे पूछना है। 22 साल भी आपने बहुत तूफान दिखाया, वो 22 साल के बाद क्या हासिल हुआ, बहुत पूछना है। उनसे पूछना है कि आपने 20-30 साल हुकूमतें की और किस नाम पर की, किस इशू को लेके आप लोगों के पास गए, क्या वो आपको मिला? तो लोग उनसे पूछेंगे इसका भी कि भाई ये आपको किस मकसद के लिए था, तो वो उसमें आपने कुछ हासिल किया, तो लोगों को पूछना है। मैं एक इंडिविजुअल, मैं तो अपनी राय बता सकता हूँ, लेकिन लोगों को पूछने के लिए बहुत है, और इसलिए जब हम लोग पूछेंगे एक वक्त होगा, क्योंकि जो खामोशी लग रही है लोगों में, लोग बहुत इस वक्त सोच में, वो सोच रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। तो वो तो आपकी जमात से भी आप अगर जिन लोगों ने उनसे दगा किया, जिन लोगों ने उनको इस्तेसाल किया, अब अगर लोग उनसे ही तवक्को रखते हैं, ये आगे हमारे सिंसियर लेंगे, कुछ करेंगे, वो लोगों को देखना है। लेकिन आपकी जमात से भी पूछा जाएगा अगर आप इतने सवाल उठा रहे हैं पीएचडी पे। हमने अपनी जमात में डाल दिया है डिबेट, अब हमारी जमात इस डिबेट को किस नतीजे तक पहुंचाएगी वो आपको जल्द पता चलेगा। तो क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीएचडी का हिस्सा नहीं रहेगा? अगर नहीं, वो अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, वो डिबेट के बाद, मीटिंग के बाद सब कुछ फैसला होगा कि भाई किस तरफ हम जा रहे हैं, हम अपने लिए क्या मुनासिब समझेंगे, क्या मेरी पार्टी में मेजॉरिटी भी मेरे साथ इस इशू पर है, ये वक्त बताएगा। क्या वो चाहेंगे, ये सब देखो, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हमारी जमहूरियत में हमारी पार्टी में जमहूरियत है। थैंक यू सो मच वकील साहब, कश्मीर लाइव से बात करने के लिए। बहुत बहुत